Yes, good morning. Can you hear me? आवाज आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, Can sir. you PPT नजर आ रही क्या? Yes. Okay. So in the last lecture, we have completed our second and very big topic, thermodynamic second. And today we start the last topic of our paper 8, that is a chemical equilibrium. Chemical equilibrium. Now this topic already studied in 11th standard, that is chemical equilibrium. Most of the part of this topic you have already studied in 12th standard. So before starting this topic, we see that is first of all reaction. What is mean by that is a chemical reaction? Yes, can anybody tell me what is mean by reaction? Reaction यानी क्या? Yes, reaction means a process in which two or more molecule they combine and they form a new molecule is called as chemical reaction, or conversion of reactant into product, R into P, that is simple definition, that is conversion of reactant into product. Reaction में क्या होता है? reactants किस में convert होते हैं? Product में convert होते हैं. Reactants are converted into product. Now on the basis of heat evaluation, there are two types of reaction we have seen already, that is exothermic reaction and endothermic reaction. Exothermic reaction, a reaction in which heat is evolved, is called as exothermic reaction, we have seen. And endothermic reaction, a reaction in which heat is absorbed. So these are the types of reaction on the basis of heat changes. Now again on the basis of direction, again there are two types of reaction, that is a reversible reaction and irreversible reaction. Reversible process and irreversible process we have seen in thermodynamic first. So reversible reaction means what? Reversible reaction, that is a reaction in which reactants are converted into product. Reactants are converted into product and products are again converted into reactant. यानी reactant product में convert होते हैं और product फिर reactant में convert होते हैं. That is called as the reversible reaction. उसको हम दो half arrow से denote करते हैं, reversible reaction. ये सब हुआ है आपका 11th में 12th में. Now irreversible reaction, a reaction in which that is only reactants are converted into product. And a irreversible reaction में क्या होता है? R is converted into P. P is not converted into R. यानी ऐसी reaction जिसमें reactant product में convert होते हैं, product दोबारा reactant में convert नहीं होते, उसे हम कहेंगे that is a irreversible reaction. So on the basis of that is a direction, there are two types of reaction, reversible reaction and irreversible reaction. We have seen in thermodynamic first में हमने देखे हैं, that is reversible and irreversible reaction. Now again there are two types of equilibrium. और नाज़नीन को ने अपना म्यूट कर दो, नाज़नीन फातिमा म्यूट कर दो आप. So there are types of equilibria,
homogeneous and heterogeneous equilibria. Homogeneous and heterogeneous equilibria. Homogeneous ये भी हमने देखा है पहले. Homogeneous equilibria. होमो का मतलब है सेम. जिस equilibria में, जिस प्रोसेस में, जिस रिएक्शन में, that is all, देखिए, a system in which all the reactant and product in same physical state is known as homogeneous equilibrium. जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फिजिकल स्टेट में है, सेम फेज में है, उसे हम कहेंगे होमोजेनियस इक्विलिब्रिया. यानी अगर रिएक्टेंट है, पूरे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हैं, सो ऑल आर इन गैसियस सपोज, तो प्रोडक्ट भी क्या गैसियस ही होंगे, प्रोडक्ट भी गैसियस होंगे. और रिएक्टेंट लिक्विड है तो प्रोडक्ट भी लिक्विड होंगे, या रिएक्टेंट सॉलिड है तो प्रोडक्ट सॉलिड होंगे. यानी पूरे उस रिएक्शन में ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज. पूरे फेज का मतलब है आइदर इन सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट और इन दैट इज द गैसियस स्टेट, इज कॉल्ड एज होमोजेनियस इक्विलिब्रिया या होमोजेनियस रिएक्शन. होमो मतलब है सेम, यानी जिस रिएक्शन में, जिस प्रोसेस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट होंगे सेम फेज में होंगे, सेम फेज में होंगे, दैट इज कॉल्ड एज द होमोजेनियस इक्विलिब्रिया. अब दूसरा है हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रिया. हेट्रो इज ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स डिफरेंट. हेट्रो का मतलब है डिफरेंट. अब क्या होगा इसमें, ए रिएक्शन और इक्विलिब्रिया और ए प्रोसेस in which that is a reactants and products are not in same phase. जिसमें सेम फेज में है उसे हम कहेंगे होमोजेनियस इक्विलिब्रिया, एंड जिसमें डिफरेंट फेज में है इट इज कॉल्ड एज heterogeneous equilibria. That is a system in which all the reactant and product are in different physical state. Different physical state means is known as heterogeneous equilibrium. यानी कोई गैस रहेगा, कोई सॉलिड रहेगा, कोई लिक्विड रहेगा, या दो गैस रहेंगे, वन सॉलिड रहेगा या वन लिक्विड रहेगा, डिफरेंट फेजेस रहेंगे. सो इट इज कॉल्ड एज द दैट इज heterogeneous equilibria. So this is the basic part of the topic, that is homogeneous and heterogeneous equilibria. Now next, again equilibrium is classified into two group, that is static and dynamic. इक्विलिब्रिया को फिर से जो है दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, स्टैटिक एंड डायनेमिक. इफ अ स्टेट ऑफ बैलेंस is achieved but the reaction is virtually stopped completely is known as static equilibrium. Yani when a state of balance is achieved and reaction is completely stopped, उस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे स्टैटिक. And if a reversible reaction do not cease even if the equilibrium is attained, यानी जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम ऑब्टेन होने के बाद भी कंटिन्यू रहती है, that is called as the dynamic equilibrium. That is a reversible reaction. इसका एग्जांपल क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में. सो अगेन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में. सो इट इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इट कंटिन्यू. अंडरस्टैंड? सो इट इज कॉल्ड एज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम. अब देखिए एग्जांपल H2. देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में नजर आ रहा है कि आपको गैस लिखा हुआ है G. G मीन्स गैस स्टेट, यानी हाइड्रोजन इट इज इन द फॉर्म ऑफ गैस स्टेट. प्लस I2 आयोडीन, यहाँ पे ब्रैकेट में G लिखा हुआ है. G मीन्स इट इज इन गैस स्टेट और इट गिव्स 2HI. हाइड्रोजन और आयोडीन गैस के मिलने से हाइड्रोजन आयोडाइड गैस तैयार होती है, 2HI, और इट इज इन गैस स्टेट. अब देखिए फिजिकल स्टेट कैसी है तीनों की, बता सकते क्या? तीनों की फिजिकल स्टेट, हाइड्रोजन की, आयोडीन की, गैसियस. तो कैसी हो गई? सेम हो गई, सेम है, डिफरेंट नहीं है. सो इट इज कौन सी टाइप की रिएक्शन है ये, होमोजेनियस है या हेट्रोजेनियस? यस, Homogeneous. करेक्ट, बिकॉज all reactant and product are in same phase. अगर एक भी चेंज होता है इसमें कि एक गैस रहता, सॉलिड रहता या लिक्विड रहता, तो ये डिफरेंट टाइप.
सो इट इज, आपको एक ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज होमोजीनियस, कौन से रिएक्शन होमोजीनियस है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो इसमें आपको टाइप दे सकते हैं, रिएक्शन देंगे कौन से टाइप की रिएक्शन है, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, या एनी अदर टाइप है। तो रिमेंबर दैट, ये ऐसा आपको आइडेंटिफाई करना है कि होमोजीनियस रिएक्शन कैसी है और हेट्रोजीनियस। सो इट इज एग्जांपल ऑफ, कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं आप। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया गैस कैसे तैयार होती है बता सकते हैं क्या? इट इज एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस रिएक्शन। यस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अमोनिया? अमोनिया गैस कैसे तैयार होती है, किन दो गैस के मिलने से अमोनिया तैयार होती है? यस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। यस करेक्ट, वेरी गुड, दैट इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। आगे देखेंगे हम लोग, दैट इज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, दोनों गैसों को मिक्स करेंगे तो जो गैस मिलने वाली है वो गैस है अमोनिया गैस। दैट इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अमोनिया गैस? अमोनिया गैस NH3। करेक्ट, NH। इट इज एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस। ये पूछा, देखिए मेरे ख्याल से इससे पहले एग्जाम में आया था, मिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस टू गिव दैट इज अमोनिया गैस इज एग्जांपल ऑफ डैश बोल के, होमोजीनियस रिएक्शन है, हेट्रोजीनियस। इससे पहले के ऑब्जेक्टिव में पूछा, एग्जाम में पूछा है ऑब्जेक्टिव में कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। सो इट इज ए होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस प्रोसेस या होमोजीनियस रिएक्शन। नाउ अनदर एग्जांपल, थ्राइस Fe, थ्राइस Fe प्लस 4H2O, यानी फेरस को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन वाटर मिलाएंगे, फेरस इन सॉलिड स्टेट Fe प्लस H2O, H2O इज इन लिक्विड स्टेट, इक्विलिब्रियम, इट फॉर्म, देखिए क्या मिलेगा, Fe3O4, फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। नाउ सी द फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट Fe में है, सॉलिड स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में है, फेरिक ऑक्साइड लिक्विड स्टेट में, और हाइड्रोजन गैस, दैट इज हाइड्रोजन इज गैस, सो इट इज। तो ये देखिए इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट है डिफरेंट है, Fe सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, फेरिक ऑक्साइड लिक्विड है, और हाइड्रोजन गैसेस है। सो इट इज एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस। ऐसी आप रिएक्शन देंगे ऑब्जेक्टिव में और पूछेंगे कि ये टाइप कौन सी है, होमोजीनियस है क्या हेट्रोजीनियस। सो यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज आइडेंटिफाई कौन सी होमोजीनियस है और हेट्रोजीनियस है, क्योंकि थ्योरेटिकल इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, खाली ऐसे रिएक्शन देंगे इसमें और आपको पूछेंगे कि होमोजीनियस रिएक्शन कौन सी है, हेट्रोजीनियस रिएक्शन कौन सी है, रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी है, इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, दैट इज, यहां से ही हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम लॉ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम लॉ। इसके लिए आप एक जनरल रिएक्शन, जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन कंसिडर करेंगे, दैट इज कंसिडर अ जनरल रिएक्शन A प्लस B, इट गिव्स, या रिवर्सिबल, देखिए ये रिवर्सिबल की सिंबल है, ये दो हाफ एरो, रिमेंबर दैट, और कंप्लीट तीर का एरो है तो वो इरिवर्सिबल है, याद रखिए। ऐसा भी आ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में, रिवर्सिबल रिएक्शंस आर डिनोटेड बाय डैश, दो कंप्लीट एरो देंगे, एक कंप्लीट एरो देंगे, दो हाफ एरो, तो ये सिंबल याद रखिए आप, नजर आ रहे हैं ना आपको सिंबल, दैट इज टू हाफ एरो, इट गिव्स C प्लस D, सो A प्लस B इट गिव्स C प्लस D। नाउ लेट स्क्वायर, देखिए ब्रैकेट में A लिखा हुआ है, इट मींस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A लिखना है तो स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और A लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, यानी इसका मतलब इसे रीड कैसे करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, या बाज बुक में CA भी दिया हुआ है, कैपिटल C और उसका सफिक्स A, कैपिटल A, CA, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, CB कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, अंडरस्टैंड। सो एंड लेट concentration of A square bracket A B C D represent the molar concentration, molar concentration, यानी A का concentration क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट A, B का concentration क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट B का concentration क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट C, और D का concentration क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट D at the equilibrium point। अब इस इक्वेशन पे जो ऊपर का इक्वेशन है, देखिए ऊपर का रिवर्सिबल रिएक्शन में दो रिएक्शन होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन में दो रिएक्शन होते हैं, कौन कौन से होते बता सकते हैं क्या आप? ये 11 का पार्ट है,
मैंने लेक्चर में लिया है शायद रेगुलर में, रिवर्सिबल रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शन होते हैं। कौन से? देखिए इसमें दो रिएक्शन है। पहले रिएक्शन क्या है? A प्लस बी इट गिव C प्लस डी, ए दैट इज वन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन, इसमें पहली रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है? A और B, और प्रोडक्ट क्या है? C और D। अब दूसरी रिएक्शन बता सकते क्या आप? यस, व्हाट इज द सेकंड रिएक्शन? रिवर्सिबल दो, इसी में दो हैं, A प्लस बी। हाँ बोलिए, करेक्ट बोलिए, बराबर बोल रहे हैं आप, बोलिए। C प्लस डी, फिर A प्लस बी में प्रोडक्ट मिलेगा। कन्वर्ट, करेक्ट करेक्ट, दैट इज, इसमें दो रिएक्शन है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन यानी क्या? रिएक्टेंट पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता, तो एक रिएक्शन हो गई। और दूसरी रिएक्शन क्या होगी? प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, तो ये सेकेंड रिएक्शन हो गई। सो A प्लस बी इट गिव C प्लस डी, इट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड रिएक्शन। रिमेंबर दैट, इट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड रिएक्शन। और अभी आपने जो कहा C प्लस डी, इससे A प्लस बी हासिल होता है, इट इज कॉल्ड एज बैकवर्ड रिएक्शन। इट इज कॉल्ड एज बैकवर्ड रिएक्शन। यानी एनी रिवर्सिबल रिएक्शन हैज टू रिएक्शन, वन इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड सेकेंड इज फॉरवर्ड रिएक्शन एंड सेकेंड इज बैकवर्ड रिएक्शन। यानी कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट रिवर्सिबल, फॉरवर्ड रिएक्शन, नॉट रिवर्सिबल, फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड सेकेंड इज बैकवर्ड रिएक्शन। Backward. यस, बैकवर्ड रिएक्शन। सो अब हमें क्या करना है? लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करना है। लॉ ऑफ मास एक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? ये गुल्डबर्ग और वेज, याद रखिए, नेम ऑफ साइंटिस्ट, इन्होंने इसको इजाद किया। लॉ ऑफ मास है, 11 में हुआ है आपका, इसका साइंटिस्ट का नाम आपको आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। 11 का है बेसिक में, कि लॉ ऑफ मास एक्शन इज डिस्कवर्ड बाय डैश गुल्डबर्ग, GOLDBERG, गुल्डबर्ग, एंड वेज, WAG, नेम ऑफ साइंटिस्ट। ज्यादातर तो नहीं आएगा, लेकिन याद रखिए गुल्डबर्ग और वेज ने लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्क्राइब किया है। तो क्या स्टेटमेंट है लॉ ऑफ मास एक्शन की, कोई बता सकते क्या? हुआ है आपका 11-12 में लॉ ऑफ मास एक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन के ताल्लुक से है। रेट ऑफ कोई भी रिएक्शन का रेट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके होता है, बता सकते कोई? देखिए आधी स्टेटमेंट तो मैंने बता दिया, दैट इज द रेट, लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट दैट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, the rate of chemical reaction is directly proportional to yes, directly proportional to, क्या होगा आगे? नीचे दिया हुआ है, देखो पीपीटी में अगर नजर आए तो आप उसको देख के बता सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी को एक्टिव मास भी कह सकते हैं। इसे हम रीड करेंगे एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अंडरस्टैंड? सो एक्टिव मास भी कह सकते हैं। सो दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। ये स्टेटमेंट दी हुई, देखिए आप पिछले बार को क्वेश्चन आया था, द स्टेटमेंट दिए थे सवाल में, the rate of reaction is directly proportional to active masses of the reactant। ये name this law, ये लॉ कौन सा है? ली चार्टलियस प्रिंसिपल, या लॉ ऑफ मास एक्शन, या और अदर ऑप्शन दी, फैराडेज लॉ, या अदर कोई ऑप्शन दिए हुए थे। 4 लॉज दिए हुए थे। सो इट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। लास्ट ईयर पूछा हुआ, देखिए आपको रेगुलर में भी आता है एग्जाम में, ये कि द rate of reaction is directly proportional to active masses of the reactant, and this law is called as law of mass action। याद रखिए, law of mass action। So अब देखिए, in any reversible reaction there are two reaction, forward and backward। तब हर एक का रेट रहेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब देखिए, हम ऊपर की रिवर्सिबल रिएक्शन में दो रिएक्शन है, एक है फॉरवर्ड और दूसरा है बैकवर्ड। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब पहले का हम क्या करेंगे? रेट मालूम कर, पहली रिएक्शन का। पहली रिएक्शन कौन सी है? A प्लस बी इट गिव C प्लस डी, ये पहली रिएक्शन है। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके जो रिएक्टेंट है, वो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है। तो पहली रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन कौन से हैं बताइए? फर्स्ट रिएक्शन प्लस बी,
A plus B. ए एंड बी बोलेंगे, ए प्लस बी, बट यहाँ पे A, क्योंकि प्रोडक्ट लेना है उसका। लॉ क्या कहता है? प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन। ए और बी रिएक्टेंट है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दोनों का प्रोडक्ट लेंगे आप। अकॉर्डिंग टू विच लॉ? लॉ ऑफ मास एक्शन। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, या इसे हम एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। अब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल निकालना है आपको, ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल निकालना है। तो क्या रूल है? मैथ्स वाले मालूम है उनको कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यस, तो हम K1 रखेंगे। K1 इज इक्वल टू इनटू बाकी का पार्ट एज इट इज रहेगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ओके, ये हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इसमें जो दूसरी रिएक्शन कौन सी है? बैकवर्ड रिएक्शन। हम उसका रेट मालूम करेंगे। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब इसमें दूसरी रिएक्शन कौन सी है? सी एंड डी ड्यू ए एंड बी। उसमें रिएक्टेंट कौन से हो गए? दूसरी रिएक्शन में पूछ रहा हूं मैं। C और D. सी और डी, करेक्ट। तो रिएक्टेंट लेना है, उनका प्रोडक्ट लेना है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इज इक्वल, so rate of backward reaction is directly proportional to concentration of C into concentration of D. So ये पर proportionality symbol निकालिए आप, proportionality symbol लिखिए। So put the another constant K2 into concentration of C into concentration of D. यानी एक हमने रिवर्सिबल रिएक्शन कंसिडर करके, रिवर्सिबल रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक है फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा है बैकवर्ड रिएक्शन। उस पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया और उसका रेट मालूम किया। ये पहला जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, वेयर K1 एंड K2 आर रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखिए रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में कब होता है? रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में कब होता है? व्हाट इज द, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम ही है केमिकल इक्विलिब्रियम, तो कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस इक्विलिब्रियम स्टेट में कब होगा? अब देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है? दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब रिएक्शन होती है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस। याद रखिए फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है? बढ़ता है, और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है? कम होता है। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस। और इसमें क्या होता है? एक स्टेज कम, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कम हो रहा है। सो स्टेज कम, एट दिस स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर होता है। तो रिएक्शन की उस कंडीशन को हम कहते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। देखिए कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में कब होती है? जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है, और व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सो दिस इज द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। यानी जब दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर सेम, जब दोनों रेट सेम होंगे तो जब रिएक्शन क्या होगी? इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी। तो हम फर्ज करेंगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। देखिए देयरफॉर रेट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होता है? दोनों रेट मसावी होते हैं, दोनों रेट बराबर होते हैं, टू रेट्स आर इक्वल, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मालूम किया है। देखिए दिस इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, K1 into concentration of A into concentration of B, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की वैल्यू क्या है? K2 into concentration of C into concentration of D. So at equilibrium rate of forward reaction equal to rate of backward reaction. Put the values K1 into concentration of A into concentration of B is equal to K2 into concentration of C into concentration of D. Now divide, rearrange this equation. इस इक्वेशन को रीअरेंज, K1 अपॉन K2 मालूम कीजिए, K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D एज इट इज। ये नीचे डिवाइडेशन में जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। नाउ एट एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर K1 अपॉन K2, K1 अपॉन K2 क्या है? कांस्टेंट है, इज कांस्टेंट
since both K1 and K2 are constant, the ratio K1 and K2 is called equilibrium constant. देखिए हमारी हेडिंग क्या थी, that is equilibrium constant. तो ये K1 upon K2 को हम क्या कहेंगे, equilibrium constant, and it is represented by Kc. It is represented by symbol Kc. K यानी constant है और C means concentration. C means concentration. K यानी constant और C means concentration. और simply K से भी हम denote करते हैं. Subscript C indicate the value in terms of concentration of reactant and product. So this is that is a equilibrium constant. Now इसी को हम कैसा लिखेंगे, K1 upon K2 यानी constant, इसको हमने दूसरे constant से replace किया, and Kc. तो Kc क्या होगा, रिमेनिंग राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन है वो एज इट इज रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन और इक्विलिब्रियम लॉ. सो दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. जनरल रिएक्शन है फर्स्ट की, देखिए ये रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, A प्लस बी इट गिव्स C प्लस डी. अब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्टली लिखना है Kc. तो क्या लिखेंगे, देखिए Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड D, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड D, और यहाँ पे C एंड D क्या है, पहले प्रोडक्ट में है जनरल रिएक्शन में, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B. अंडरस्टैंड. अब सपोज टेक अनदर रिएक्शन, A into A plus B into B is equal to C into C plus D into D. ये रिएक्शन है. अब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है आपको डायरेक्टली. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc. Kc. ये भी आपको आ सकता है एग्जाम में, आया हुआ है क्वेश्चन, रिमेंबर दैट, क्योंकि आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ ज्यादा आपको जोर देना है. Kc से डिनोट. सर ऑफलाइन है क्या ऑनलाइन? हाँ ऑनलाइन ऑनलाइन है या ऑनलाइन. अभी तक तो ऑनलाइन है, अभी नोटिस क्योंकि सर्कुलर अलग अलग आते, अगर आपको ऐसा कुछ रहा तो बता दिया जाएगा, अभी तो ऑनलाइन ही. ओके, सो अब ये रिएक्शन है A इंटू A प्लस B इंटू B यू C इंटू C प्लस D इंटू D. अब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, तो इसमें प्रोडक्ट क्या है, C और D. देखिए ये स्मॉल a क्या है, जरीब है उसका, A का जरीब है, या कोएफिशिएंट जिसे इंग्लिश में कहेंगे, कोएफिशिएंट है. जैसा कि 2 ले सकते हैं, 2a, तो टू क्या होगा, उसमें कोएफिशिएंट होगा, A का कोएफिशिएंट. वैसे B का कोएफिशिएंट स्मॉल b है, C का स्मॉल c और D का स्मॉल d. अब इसके लिए डायरेक्टली आपको Kc लिखना है. ये भी आपको एग्जाम में आता है, देखिए ऑब्जेक्टिव में रिएक्शन देते हैं, उसका Kc कौन सा है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट क्या है इसमें, C और D. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D लिखेंगे, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या है, A और B, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B लिखेंगे. अब देखिए C का कोएफिशिएंट क्या है, स्मॉल c, तो जो C का कोएफिशिएंट है उसको उसके पावर में लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेस टू C. समझ में आ रहा है कि देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेस टू C, यहाँ पे हमने C का पावर नहीं लिखा है क्योंकि ऑलरेडी एक है यहाँ पे. देखिए ये इक्वेशन में क्या है, C का पावर, C का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, D का कोएफिशिएंट 1 है, A का कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है यानी 1 है, और B का कोएफिशिएंट भी 1 है. इसलिए यहाँ पर भी है पावर में, लेकिन 1 है, और पावर में 1 नहीं भी लिखे तो चल सकता है, अंडरस्टैंड. लेकिन यहाँ पे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d है, इसलिए जो भी उसके कोएफिशिएंट है a, b, c, d के, उसके पावर में लिखना है. ठीक है, C का कोएफिशिएंट स्मॉल c है तो पावर में लिखिए. कैपिटल D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, उसका कोएफिशिएंट क्या है, स्मॉल d. कैपिटल A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल A, उसका कोएफिशिएंट क्या है, A है तो रेस टू A. कैपिटल B कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल B, उसका कोएफिशिएंट क्या है, स्मॉल b, सो वी हैव रिटन स्मॉल. ये अंडरस्टैंड, समझ में आया कि आपको ये एग्जांपल सॉल्व करना है इसके आगे. और आपको ये जी सर. एक क्वेश्चन आएगा कंपल्सरी, रिएक्शन देते इसका Kc मालूम करो. Kc मतलब डायरेक्टली लिखना है आपको, 4 ऑप्शन देंगे, कौन सा सही है वो आपको करेक्ट करना है, और इसमें प्लस नहीं लिखना है. देखिए यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ प्लस लिखते, पूरा लिखते बराबर, बट प्लस नहीं है यहाँ पे. रिएक्शन में है प्लस बट यहाँ पर नहीं है. देखिए एग्जांपल्स, क्वेश्चन कैसा रहेगा, रिएक्शन देंगे और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन सा है पूछेंगे. राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. ये खाली रिएक्शन देंगे आपको और 4 ऑप्शन देंगे, Kc कौन सा है इसका. तो क्या होगा, तो सबसे पहले याद रखिए आप Kc इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन,
और उसका कोई कोएफिशिएंट है तो उसके पावर में लिखेंगे, फिर डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लिकेशन, और उसके अगर पावर्स हैं तो उसके कोई जरिए उसका कोएफिशिएंट है उसके पावर में लिखेंगे। तो पहली रिएक्शन देखिए, N2 plus 3H2 it gives 2NH3, N2 plus 3H2 it gives 2NH3। अब प्रोडक्ट कौन सा है इसमें, अमोनिया NH3 है, और रिएक्टेंट क्या है N2 और H2। तो Kc डायरेक्टली Kc इज इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या आएगा, जो प्रोडक्ट है वो लिखेंगे, कौन सा है प्रोडक्ट NH3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3। देखिए ब्रैकेट में 2NH3 नहीं लिखेंगे, बच्चे लिखते हैं 2NH3 बट डोंट राइट 2NH3, ओनली राइट NH3। अब NH3 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हैं, तो वो जो मॉलिक्यूल्स है या उसका जो कोएफिशिएंट है वो पावर में जाएगा, रेज़ टू 2 डिवाइडेड बाय, अब रिएक्टेंट 2 है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। अब नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट कितना है, एस बताइए, नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट 1s, तो 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टैंड। और हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट कितना है, क्या कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 तो 3H2 ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, पावर में लिखेंगे, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये लास्ट में पूछा देखिए क्वेश्चन, इस पे ये रिएक्शन दिया था उसने और ऑब्जेक्टिव में पूछा था, 4 इक्वेशन दिए थे, केसी कौन सा है, बाज इसमें प्लस दिया था उसने, बाज इसमें 2 दिया था, तो उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन पहचानना है। Kc is equal to NH3 raised to 2 into divided by concentration of N2 concentration of H2 raised to 3। अब ये नेक्स्ट रिएक्शन H2 plus I2 it gives 2Hi। अब इसका अगर आप पेन और नोटबुक लेके बैठेंगे तो लिखिए उसमें ये रिएक्शन लिख के, इसमें देखिए Kc is equal to क्या होगा, सबसे पहले प्रोडक्ट कौन सा है, Hi लिखेंगे, और Hi के कितने मोल्स है, 2, तो Hi कुवत 2 या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hi रेज़ टू 2 इंग्लिश में अगर बोलना है, डिवाइडेड बाय, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 कितना है, 1 ही है, तो H2 1 लिखने की जरूरत नहीं है, A है या 0.5 है तो भी लिखना है, आगे के एग्जांपल में आएगा, हम बताएंगे इसमें 0.5 है तो कैसा लिखेंगे, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। ये इक्वेशन समझ में आए कि देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आने वाला ही है फर्स्ट कीजिए इस एग्जाम में। जी सर। ओके, अब नेक्स्ट, तो बहुत इजी है, आपको खाली रिएक्शन देख के उसका ये करना है। देखिए अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, थर्ड वन, 2a plus 3b it gives 5c plus 2d। c और d इसमें प्रोडक्ट हैं और a और b रिएक्टेंट है, तो Kc is equal to Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc is equal to कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ d, ये तो लिख दिए, और c के पावर में क्या आएगा, 5 आएगा क्योंकि 5c है, और d के पावर में क्या आएगा, 2 आएगा बिकॉज 2d इज देयर, अंडरस्टैंड, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b। अब a का पावर क्या आएगा, 2 आएगा बिकॉज देयर आर, a का कोएफिशिएंट 2 है और 3 का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, सो b रेज़ टू, सो Kc इज इक्वल टू c रेज़ टू 5 इंटू, ए बी में नहीं आएगा एग्जाम में आपको, ये सल्फर डाइऑक्साइड PCl3, ये जनरल बता रहा मैं आपको समझ में आने के लिए, अंडरस्टैंड। तो सेकंड थर्ड एग्जांपल आ गया समझ में, ओके नेक्स्ट जी सर। एग्जांपल, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये रिएक्शन देंगे आपको, कौन सी है बताइए, फोर्थ रिएक्शन, होमोजेनियस है क्या हेट्रोजेनियस है, ये भी आ सकता है आपको, ये रिएक्शन देगी कौन सी टाइप है, होमोजेनियस है हेट्रोजेनियस है, हेट्रोजेनियस। Heterogeneous. नो, homogeneous। होमो तो एक तो है फिर, क्योंकि SO2 देखिए, अगर कभी आपको यहाँ पे देना जरूरी नहीं है, कभी G देता है कभी नहीं, SO2 यानी क्या, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर, ऑक्सीजन गैस है, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी गैस है, तो तीनों भी गैसेस है यहाँ पे, SO2 गैस है, हाफ O2 गैस है, SO3 भी गैस। देखिए ये ऐसा दे सकता है आपको, खाली G दिए तो कोई भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फोर्थ क्लास का स्टूडेंट भी बोलता है यहाँ G है, G यानी या S यानी या L यानी अगर सेम रहे तो होमोजेनियस, तो आपको आइडेंटिफाई सोचना है कि SO2 क्या है, O2 क्या है, SO3 क्या है, और उसके बेसिस पे डिसाइड करना है कि ये होमोजेनियस है या हेट्रोजेनियस। ओके, सो क्या होगा देखिए, इट इज ए होमोजेनियस रिएक्शन, इसका Kc लिखेंगे, SO3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 एक ही है तो पावर लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, लेकिन देखिए O2 का कोएफिशिएंट कितना है, हाफ हाफ है, तो ये हाफ लिखे,
हाफ 1 by लिखेंगे 1/2 s, हाफ लिखते हैं 1/2। ये मैंने नहीं यहाँ पे, इसलिए मैंने ये एग्जांपल बताया। बच्चे कंफ्यूज होते कि 1/2 आया तो क्या करने का। जो भी कोएफिशिएंट है उसका 0.3 है फर्ज कीजिए तो 0.3 लिखना पावर में, उसमें ये देखना नहीं कि 1 नहीं दिया 2 नहीं दिया, जो भी कोएफिशिएंट है उसका अगर 0.3 है तो 0.3 लिखेंगे। अंडरस्टैंड? 0.5 है तो 0.5, 1/2 है 1/2, 3/2 है 3/2 लिखेंगे। सो दिस इज द नेक्स्ट फिफ्थ, PCl3 plus Cl2 it gives PCl5. Phosphorus trichloride react with chlorine to give PCl5 phosphorus pentachloride. इसके लिए Kc लिखना है तो PCl5 रेस टू कितना आएगा 1 आएगा बिकॉज ओनली 1 molecule is there. Concentration of PCl5 divided by concentration of PCl3, concentration of PCl3 into concentration of Cl2. यहाँ पे पावर में कुछ नहीं आएगा क्योंकि हर एक 1 मॉलिक्यूल है। PCl3 का कोएफिशिएंट 1 है, Cl2 का कोएफिशिएंट 1 है और PCl5 का कोएफिशिएंट भी 1 है। ओके, सो ये होगा इसके क्वेश्चन, दैट इज राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इट इज इंपॉर्टेंट, देखिए ये इसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव में आएंगे, एक तो टाइप आइडेंटिफाई करना, होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस है, और केसी मालूम करना, रिएक्शन देंगे ये केसी। आज जो हो गया इस पे ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव ये 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अंडरस्टैंड? सो ओनली 2 minutes are remains, so we will stop. In the next period we see Gibbs free energy change. अंडरस्टैंड? देखिए अगले हफ्ते अब क्या होता है, कॉलेज क्विज बोर्ड कॉलेज शुरू होता है या नहीं है। अगर हो गया तो ऑफलाइन ले लेंगे हम, अगर नहीं हुआ तो ऑनलाइन ले लेंगे। ठीक है, अभी मंडे से तो स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसा कुछ बोर्ड लोग बोल रहे, न्यूज़ आ रहे, वैसे देखेंगे हम। ओके, ओनली 2 minutes are remains. Okay.